So hello everyone, I hope all of you are doing good. So guys, in the today's lecture we are going to study the parliament. Okay, so I will be doing one thing, that in the today's lecture I will be discussing the most important point in the topic of parliament. But since we know that parliament as a topic is so vast, so we cannot complete it in a single lecture. So I would be delivering another lecture in which we will be binding up the another important point, like the important bills, like the important motions, and as well as we will be doing that what are the special power given to the Lok Sabha, and ऐसी पावर जो कि राज्यसभा के पास होती हैं बट लोकसभा के पास नहीं होती. along with it, in our second lecture हम लोग डिस्कस करेंगे about the state legislature. Okay, so I can say one thing, that when I will be combining my two lectures, like today's lecture and the another lecture, we can say that we have complete the topic of legislature. So legislature as a whole is a complete heading under which two topic lies, parliament and state legislature. So in these two lectures I will be binding up both the topics for you. And guys, this is the part of my crash course which is paid and available on my app. You guys can enroll in that as well if you want, but if not, no need to worry, because the important point is here is like I have feel पार्लियामेंट एज अ टॉपिक इज़ वेरी वेरी लेंदी. एंड स्टूडेंट मेरे से यही पूछते हैं ऑन दी इंस्टाग्राम, ऑन दी ईमेल, कि भैया पार्लियामेंट के अंदर क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हमको समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज इट इज़ सो वास्ट. इतना सारा है, आप लक्ष्मीकांत उठा करके देखेंगे एंड कॉम्प्लेक्स भी चीज़ें हैं. सो वो यही बोलते हैं कि भैया हमें समझा दीजिए कि हमें पढ़ना क्या है. सो आई थॉट कि इट माइट बी द प्रॉब्लम विद हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, सो आई विल बी अपलोडिंग दिस lecture, I mean both the lectures of the parliament on the YouTube as well, so that you guys shall not be lagging behind. Okay, and इसके साथ साथ I would also be like to tell you one thing, that the PPT of the present video will not be available for you. So आप एक काम कर सकते हैं, whatever I will be teaching you or whatever is written on the screen, you guys can have a note of it. Okay, because it is the most relevant piece of information in the topic of the parliament, तो आप इसको मिस मत करना. and whatever I am teaching you, just write it down in your notebook, in your pages A4 sheet, जहाँ पर भी आप लोग लिखते हैं या फिर अपने notes बनाते हैं. And again guys, just one more thing, that if you guys haven't subscribed to my channel, please subscribe it. If you have any doubt, please comment on it. Okay, but apart from that, I would also like to tell you one thing, that now as I'm teaching you the parliament, so you have to remember one thing, whatever I am teaching you is the relevant piece of information for you. And आप बेशक लक्ष्मीकांत ना पढ़ें, बट वट एवर आई एम टीचिंग यू, वट एवर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू. और आप इसको भी अगर रिवाइज करके जाते हैं, सो आई विल बी थिंकिंग लाइक यू हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ पार्लियामेंट. बट अगर आप मेरी पार्लियामेंट की दोनों वीडियोस को देखेंगे, सो मेक श्योर आप दोनों ही वीडियोस को देखें, बिकॉज अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे एंड अनदर वीडियो को नहीं देखते हैं, you will be in kind of a lost, because these two lectures can not be watched in isolation. बोथ दोनों को जब आप कंबाइन करके देखेंगे ना, then you will take the maximum advantage of the lectures. And again reminding, since this lecture is the part of my course, so it is not a simple 10-15 minute video, it is a full-fledged lectures of hours, at least 1.5 hours. So for those people who are having time can watch the lecture, for those who are not having time may skip it, it's up to you. So now with that much of information, I'm going to start with the parliament. And again remember that we are studying for the purpose of the law entrances like DU, BHU, Punjab University, etc. So the very much depth of the concept are not required. सो जिस टॉपिक में जितनी डेप्थ मेरे को चाहिए होगी, आई विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन इट. एंड जो कि मेरे को लगेगा नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एंट्रेंस, I will not be going into that particular area, because you guys otherwise will be unnecessarily confused in that. अगर आपको इतना कुछ समझ में आ रहा है, then I am going to start with the topic of parliament. And now आराम से नोट बनाना एंड ध्यान से सुनना. ओके, सो गाइज देखो, पार्लियामेंट आपने देखा होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या कवर किया है, एग्जीक्यूटिव. इन टू पार्ट्स वी हैव कवर द एग्जीक्यूटिव. ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पार्लियामेंट. एंड जैसा कि आपको पता है गाइज कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, डेट इज़ पॉलिटी एंड आईपीसी को साथ साथ लेकर के चल रहे हैं. सो आप एक बात का ध्यान रखना, आई थिंक मैंने आपको आईपीसी में ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था. सो
वो, एंड आपका जो एग्जीक्यूटिव है वो आप उसको रिवाइज करते रहें, ठीक है। जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं आप उनको प्रैक्टिस करते रहें, एंड अगर आपको कोई डाउट है आई वुड बी अवेलेबल फॉर यू, सो यू गाइज कैन हैव इट। ऑल्सो वी वुड बी हैविंग सम एक्स्ट्रा डाउट सेशन ऑन दी ऐप वेरी वेरी सून, सो आप वहाँ पर भी जा करके उसको देख सकते हैं। नाउ गाइज, जैसा कि आपको पता है पार्लियामेंट इज़ अ टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ज़रा देख लेते हैं कि डी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं या फिर वो आपसे क्या पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट किस पार्ट के अंदर आता है। सो पार्लियामेंट कम्स अंडर पार्ट 5th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो पहला क्वेश्चन आपसे आ सकता है दैट पार्लियामेंट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन आपको दे देगा पार्ट 3, 4, 5th, 6th। यू हैव टू मार्क पार्ट 5th एज अ राइट आंसर, ओके। या फिर आपसे इसका अपोजिट क्वेश्चन पूछ सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज अंडर पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपको ऑप्शन में दे देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर दे देगा पार्लियामेंट, देन विल गे अटॉर्नी जनरल, एंड लास्ट में दे देगा CAG। एंड फिर आपको ऑप्शन देगा दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइट आंसर, A, B, C, ओनली C, ओनली D, और ABCD, इस टाइप से। देन ही विल प्रोवाइड यू दी ऑप्शन। सो आपको पता होगा लाइक ABC, द प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट एंड द अटॉर्नी जनरल, ऑल ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ पार्ट 5th, दैट इज़ द यूनियन, ओके। सो ये सारे पार्ट 5th का ही पार्ट हैं, बट CAG इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द पार्ट 5th। सो इस काइंड के बेसिक क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे तो बहुत टफ नहीं है, दिस आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बट स्टूडेंट यहाँ पर भी गलती कर देते हैं। सो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू दैट आपको क्या याद रखना है, पार्लियामेंट किस पार्ट के अंदर है। सो इट इज़ पार्ट अंडर पार्ट 5th। अनोदर थिंग, पार्ट 5th के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर एग्जीक्यूटिव आते हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आते हैं, देर आर 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव। उसके बाद पार्लियामेंट आता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है, इस तरीके से लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो यू शुड रिमेंबर कि पार्ट 5th के अंदर क्या क्या कंटेंट आता है। अगर इतना क्लियर है देन स्टार्टिंग विद अवर पॉइंट नंबर 1, दैट इज़ इंडिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसको हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला है, अनदर कौन सी होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप सभी को पता है हमारी इंडिया क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड लाइक ये वेस्ट मिनिस्टर कहाँ से आया है, इट केम फ्रॉम UK, और आई शुड से फ्रॉम ब्रिटेन। वहाँ पर बोला जाता था वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। सो इंडिया क्या है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन अगर मैं इसको US के साथ कंपेयर करता हूँ देन US इज़ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप लोग देखेंगे इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, द सेपरेशन बिटवीन देम इज़ नॉट वेरी वाटर टाइट, बोथ ऑफ देम आर काइंड ऑफ अ मिक्स थिंग। लाइक आप लोग हमारे यहाँ भी देखेंगे जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप इनको देख लीजिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, या फिर लेट्स से एनी मिनिस्टर, लेट्स से अमित शाह जी एंड राजनाथ सिंह जी। सो व्हाट विल यू सी, you will see one thing that all of them are the part of the parliament, like some are the part of the upper house, some are the part of the lower house. That means to say that these are kind of a part of the parliament। ऐसा नहीं है कि हमने उनको बिल्कुल अलग सेपरेट कर दिया कि आप अलग रहें, नहीं ना। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन US के अंदर ऐसा नहीं होता। US इज़ काइंड ऑफ अ kind of a presidential, not kind of a, it is a presidential form of a government, okay। So if it is clear, then another question which they can ask you is about the constitution of parliament। and जहाँ पर मैं constitution से मतलब भारत का संविधान नहीं है, इसका मतलब है हमारा पार्लियामेंट किन किन से मिल करके बना है। सो अगर मैं बात करता हूँ देन पार्लियामेंट किस किस से मिल करके बना है, पहला आता है लोकसभा LS, सेकंड आता है राज्यसभा RS, अनोदर वन इज़ द प्रेसिडेंट। एंड बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ये लगता है कि सिर्फ पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा, नो, इट ऑल्सो इंक्लूड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। विदाउट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट इज़ नॉट कंप्लीट। क्यों, क्योंकि हर एक बिल को एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट का एसेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब तक राष्ट्रपति जी की मोहर नहीं लगेगी, मोहर इन द सेंस मैं बता दूं आपको, एसेंट नहीं देंगे प्रेसिडेंट, वो क्या नहीं बन सकता, एक्ट नहीं बन सकता, वो कानून नहीं बन सकता, वो एनफोर्स में नहीं आ सकता, ठीक है। अ बिल विल रिमेन जस्ट अ पीस ऑफ पेपर अनटिल एंड अनलेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल गिव द एसेंट टू दैट पर्टिकुलर बिल।
एंड ये सब मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, इट इज़ अंडर आर्टिकल 79। एंड जैसा मैं आप सभी लोगों से हर बार बोलता हूँ कि आप क्या करेंगे, जब भी मैं कोई आर्टिकल यहाँ पे मेंशन करता हूँ तो आपके लिए, आपको पता है, लाइक दोज हु आर माई स्टूडेंट, अगर मैंने अपनी पीपीटी के अंदर आर्टिकल नंबर मेंशन किया है, यू हैव टू मेमोराइज इट, ठीक है। आप लोग आर्टिकल 79 को मेमोराइज कर लेंगे, व्हाट इज़ इट। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, घर पे जा कर के जब आप लेक्चर देख लेंगे, आप क्या करेंगे, आर्टिकल 79 को बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट गिव इट अ बेयर रीडिंग फ्रॉम द बेयर एक्ट। और अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे सिंपली टाइप करिए आर्टिकल 79, द कंप्लीट बेयर एक्ट लैंग्वेज विल बी अवेलेबल देयर। सो आप लोग वहाँ से पढ़ लेंगे आर्टिकल 79 क्या है। उसके अंदर साफ साफ लिख रहा होगा दैट House of the People, then the Council of State and the President are the part of the Parliament। एंड मैं यहाँ पे कितने ओपनली, कितने फ्रेंकली लोकसभा राज्यसभा बोल रहा हूँ, बट जब आप हमारे संविधान को देखेंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, तो आपको एक बात का पता चलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा राज्यसभा नहीं लिखता, वो लिखता है लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट। सो हाउस ऑफ द पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट आर द ऑफिशियल नेम ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। हमारा ओरिजिनल संविधान में लोकसभा राज्यसभा मेंशन नहीं था, अब भी नहीं है। सो ये कब आए हैं, ये बाद में अडोप्ट किए गए थे हमने, लोकसभा राज्यसभा। द हिंदी नेम वर अडोप्टेड मच लेटर, ओके। अनोदर थिंग जो आपको पता होना चाहिए वो ये होता है कि हाउस ऑफ द पीपल को हम लोग क्या बुलाते हैं, लोकसभा। एंड लोकसभा के भी फिर डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे कि फर्स्ट चैम्बर हो गया, या फिर पॉपुलर हाउस हो गया, इस तरीके से। एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, राज्यसभा, या फिर सेकंड चैम्बर, या फिर हाउस ऑफ द एल्डर्स। और एक इसके लिए नाम और आता है, जो कि आता है लाइक, अगर लोकसभा की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं लोअर हाउस। और जब हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं अपर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस एंड अपर हाउस, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर वो आपको ऑप्शन में लोकसभा की जगह पर हाउस ऑफ द पीपल दे दें, तो आप क्या सोचेंगे कि अरे इसका आंसर तो लोकसभा था, भैया ने तो लोकसभा बताया था, बट इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। सो ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हम लोकसभा को किन किन नाम से बुलाते हैं। एंड ऑफिशियल नाम क्या होता है, हाउस ऑफ द पीपल, एंड फॉर द राज्यसभा ऑफिशियल नेम इज़ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। अगर इतना आपको यहाँ तक क्लियर है, देन आप अनदर पॉइंट समझेंगे, डेट इज़ दैट आप लोगों ने एक बात देखी होगी, जब भी हम इंडिया के कंसर्न में कुछ भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तो हम लोग इसको कंपेयर करते हैं विद सम ऑफ द अदर डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। स्पेसिफिकली टेलिंग यू, तो हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, आइदर वी कंपेयर इट बाय द ब्रिटिश, क्योंकि मोस्ट ऑफ अवर लीगल सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ द कॉमन लॉ फैमिली। एंड अनदर थिंग विच वी कंपेयर इज़ फ्रॉम द यूएस, ठीक है, यूएस और यूके, एंड समटाइम फ्रॉम द फ्रांस एज वेल। सो आप लोग देखेंगे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कौन होते हैं, नॉट अ कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द कांग्रेस। एंड व्हेन आई से कांग्रेस, डज इट मीन INC, डज इट मीन इंडियन नेशनल कांग्रेस, नो इट इज़ नॉट। इट इज़ नॉट रेफरिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी। जिस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट बोला जाता है, हमारी लॉ मेकिंग बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, संसद। इसी तरीके से जो अमेरिका की लॉ मेकिंग बॉडी होती है उसको वो लोग बोलते हैं कांग्रेस। सो इट इज़ वॉट, इट इज़ लेजिस्लेचर ऑफ यूएस, ठीक है। इसको आप इंडिया वाला कांग्रेस मत समझना, कभी आप लोग सोचें कि अरे कांग्रेस पार्टी यूएस में क्या कर रही है, नो इट इज़ नॉट दैट, ठीक है। सो अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द कांग्रेस। अब यहाँ पर वो लोग आपको कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं लाइक 1 2 3 4, और उसमें से एक स्टेटमेंट ऐसा आ जाए दैट द मेन डिफरेंस बिटवीन द Indian and the American president is that Indian president is the constituent part of the parliament, while American president is not a constituent part of the Congress। आप बताइए, इज इट स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, ये हमेशा सही होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस वो लोग एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। आप लोग देखना, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं, बट स्टिल काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं। सो
डेट इज़ वाई आई रिकमेंड कि आप जो भी पढ़ें कम पढ़ें बट अच्छे से पढ़ें एंड उसका प्रॉपर रिवीजन देते रहें। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ क्योंकि अब आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव पूरा पढ़ लिया है, सो आप लोग उसको रिवाइज़ करते रहें। जो मैंने आपको पीपीटी प्रोवाइड कराया है बस उस पीपीटी को रिवाइज़ करते रहें। वो मुश्किल से 50 पेज की पीपीटी होगी एंड 50 पेज में जब मैं बोल रहा हूँ तो वेरी वेरी सिंपल, लाइक इस तरीके से छोटे छोटे वर्ड्स में आपको लिखा मिलेगा एंड उसमें आपका पूरा एग्जीक्यूटिव कवर है एंड उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। उसको रिवाइज करें एंड जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उनको प्रैक्टिस करते रहें। अगर क्वेश्चंस में कहीं डाउट आता है देन उसको मार्क करें एंड जब हम लोग एक डाउट सेशन रखेंगे तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, सिंपल, ठीक है। और घबराना मत, ठीक है। वी विल बी बाइंडिंग अप योर सिलेबस टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। यू आई नो यू गाइज वी गाइज आर लेट बट डोंट वरी, हम ख़त्म कर देंगे इस महीने के एंड तक अपना सिलेबस, ओके। सो विद दैट नाउ कमिंग ऑन टू द अनदर स्लाइड। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, डेट इज़ द राज्यसभा। एंड आप लोग देखेंगे इसमें हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर वन हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्ट, अनदर वी विल बी रीडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। राज्यसभा के अंदर या फिर किसी भी टॉपिक होगा हम लोग दो चीज़ों को देखेंगे, एक होगा फैक्ट और एक होगा आपका कॉन्सेप्ट्स। सो फैक्ट्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज फैक्ट एज इट इज़ मेंशन है आपकी स्क्रीन पे, आप आराम से उनको देख सकते हैं। लाइक पहली बार कब कॉन्स्टिट्यूट करी गई, पहली मीटिंग इनकी कब हुई, फर्स्ट चेयरमैन कौन बने। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज़ लाइक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2 बार चेयरमैन का ऑफिस कंज्यूकेटिवली होल्ड किया है। कंज्यूकेटिव का मतलब होता है लगातार, इन अ कंटिन्यूस मैनर, ठीक है। यानी कि 5 साल तक वही थे और उनके बाद फिर से वही हो गए, ओके। सो अब आप देखें दैट कौन थे, ऐसे सिर्फ दो ही व्यक्ति हुए हैं, दिस वन एंड दिस वन। सो आप लोग क्या करेंगे, इनके नेम को याद करके रखेंगे बिकॉज अच्छे क्वेश्चन हैं एंड आ सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन बने। अनदर इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, कि हमारा संविधान कितनी स्ट्रेंथ के लिए बोलता है। सो हमारा जो भारत का संविधान है वो साफ साफ बोलता है कि आप 250 यानी कि 250 से ज़्यादा बच्चों, सॉरी नॉट बच्चों बट मेंबर्स को नहीं अलाउ कर सकते, ओके। सो 250 मेंबर्स आर द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, द थ्रेशोल्ड विच हैज़ बिन पुट, it is kind of a limit has been put up by the constitution of India that you cannot elect or let's say nominate, you cannot induct more than 250 members into the upper house, that is the sanction is the 250, 250 is the maximum strength। एंड इस 250 के अंदर दोनों ही तरीके के होंगे, इलेक्टेड भी, ऐसे लोग जो कि चुन करके हाउस के अंदर आएंगे, और ऐसे भी होंगे जिनको प्रेसिडेंट क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। सो नॉमिनेट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट, ओके। सो द नंबर इज़ 12। आपको पता होगा कि राज्यसभा के अंदर 12 लोगों को राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, नॉमिनेट करके भेजते हैं। एंड ये मैं ऐसा कहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, संविधान का आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 अनुच्छेद 80 ऑफ भारतीय संविधान, ओके। As per the Article 80 of the Indian Constitution, I can say that the maximum strength of the Rajya Sabha is 250, in which 238 will be elected and 12 will be nominated by the President। एंड जब मैं इलेक्टेड की बात बोलता हूँ तो ये इलेक्टेड दोनों तरफ से होंगे, स्टेट से भी इलेक्ट होकर के आएंगे और आपके यूटी से भी इलेक्ट होकर के आएंगे, यूनियन टेरिटरी, ओके। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट सिनारियो की। सो प्रेजेंट सिनारियो में देयर आर 245 सीट्स विच आर फिल्ड, लाइक तो 245 मेंबर हैं, 233 आर इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड। आपको ये याद नहीं रखना है, आपको ये भी याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है कि 250 आर द टोटल मेंबर एंड 12 आर नॉमिनेटेड। अब एक अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऐसा स्टेट बता दीजिए जिसमें मैक्सिमम नंबर हैं राज्यसभा के मेंबर, ओके। सो सबसे ज़्यादा राज्यसभा के मेंबर किस स्टेट से आते हैं, फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ओके, यूपी 31, एंड द थैंक्स गोज़ टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। एंड फिर आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। आप लोग देखेंगे देयर आर सो मैनी स्टेट लाइक अरुणाचल, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन सबसे एक एक मेंबर आता है, कंबाइन नहीं है, सबसे एक एक मेंबर आता है, ठीक है। एक अरुणाचल से हो गया, एक गोवा से, एक मणिपुर, इस तरीके से सबसे एक एक मेंबर आता है। आप लोग देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 31। द थैंक्स गोज टू द पॉपुलेशन, ओके। सो वो लोग पता है आपसे कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं, वो ये बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ हैविंग द मिनिमम रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। एंड वो आपको ऑप्शन दे देंगे लाइक यूपी, लाइक बिहार,
लाइक महाराष्ट्र, एंड एक आपको दे देंगे गोवा। सो कौन होगा? गोवा। सो दिस विल बी द राइट आंसर। अगर गोवा की जगह पर मणिपुर दे दें, सो मणिपुर विल बी द राइट आंसर। और अगर लेट से मणिपुर है और यहाँ पर गोवा भी लिख दें और इसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दें, लाइक ए बी सी डी और ऑल दी अबव, उस केस में क्या होगा? सी डी, ओनली गोवा एंड मणिपुर। ठीक है, क्योंकि आजकल डी यू क्या कर रहा है, कौन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को पूछता है। सो डेट इज़ वाई मैं समझता हूँ कि आपको ज़्यादा फोकस चाहिए ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आप लोग समझ रहे हैं यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम्ड किए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, फॉर द यूट्यूब पीपल, please make sure that you are guys are writing it, otherwise you will be forgetting everything. And I am providing this lecture specifically for you here on the YouTube, so that I don't want कि you will be any kind of a loss. ठीक है, पार्लियामेंट टॉपिक मैं समझता हूँ बहुत टफ है, तो इतनी हेल्प तो मैं आपकी कर ही सकता हूँ कि मैं आपको इस टॉपिक को कवर आउट करा दूँ। एंड मुझे पता है यू गाइज आर वेरी वेरी स्मार्ट, एंड आप सब टॉपिक को आराम से खुद से कवर कर लेंगे, एंड आई एम हैविंग अ प्योर बिलीफ ओवर यू। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। And now coming on to another important point, that is the members from UTs. Members from UTs, that is यूनियन टेरिटरी। अब आप लोग देखें कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर से कितने राज्यसभा के अंदर मेंबर आते हैं? 4, 4, एनसीटी ऑफ दिल्ली से 3 एंड पोंडोचेरी से 1। ठीक है, एंड जो बाकी अदर टेरिटरी है उनका क्या? बाकी यूटीज़ का क्या? ऑल ऑफ देम आर हैविंग नो रिप्रेजेंटेशन, और आई शुड से 0 रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी इज़ हैविंग द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन द अपर हाउस, आंसर वुड बी जम्मू एंड कश्मीर। अगर वो आपसे पूछते हैं मिनिमम रिप्रेजेंटेशन, आंसर वुड बी पोंडोचेरी, नो, आंसर वुड बी द अदर एनी अदर यूटी फ्रॉम दीज 3, लाइक लेट्स से लद्दाख, or let's say Lakshadweep, or let's say Andaman, because these UTs are having 0. So 0 is less than 1 ना, so 0 will be the answer. So any other option. Hopefully आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ, लाइक आई वांट यू टू रीड एज दिस ओनली। सो यूट्यूब के बच्चे आप क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। अब बात करते हैं परमानेंट बॉडी। आपका जो अपर हाउस होता है ना, अपर हाउस से मेरा मतलब है राज्यसभा या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट बॉडी। एंड पुट अ मार्क ओवर इट। जब भी मैं स्टार के लिए बोलता हूँ समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो परमानेंट बॉडी से मेरा मतलब है कि ये जो हाउस होता है आपका अपर हाउस, ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता। इट इज़ नेवर डिज़ोल्व, ये परमानेंट हाउस होता है आपका, ठीक है, परमानेंट होता है, इसको कभी भी फुल्ली डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने राज्यसभा के केस, सॉरी लोकसभा के केस में एक चीज़ देखी होगी। लोकसभा के केस में क्या होता है, जनरल इलेक्शन से पहले पूरे हाउस को डिसॉल्व किया जाता है, बट राज्यसभा कभी भी ऐसा नहीं होता। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द फुल डिसोल्यूशन। इसमें क्या होता है, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। हर दूसरे साल 1/3, 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अनोदर थिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट इज़ द टर्म ऑफ द मेंबर। कितने साल के लिए उनको चुन करके लाया जाता है या फिर नॉमिनेट करके। सो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी टर्म होती है 6 ईयर्स। आप लोग देखेंगे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एमपी ऑफ द लोकसभा, तो हम लोग एक चीज़ को देख रहे थे कि उनकी कितनी होती है, 5 ईयर्स। मोस्टली केसेस में ऑफिस में 5 ईयर्स होती है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पर 6 साल होती है, लाइक आपके मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। और आप अगर CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को देखेंगे, उनके ऑफिस में भी 6 साल होता है, ठीक है। सो अगर वो आपको ऑप्शन देना चाहें, वो आपसे कैसे पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस होल्डर हैज़ द टर्म ऑफ 6 ईयर्स। ऑप्शन विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ द लोकसभा, मेंबर ऑफ द राज्यसभा। आंसर वुड बी मेंबर ऑफ द राज्यसभा। और अगर वो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें या फिर स्टेटमेंट बेस दे दें, वो आपसे बोलेंगे कंसिडर द फॉलोइंग ऑफिसेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, CAG, विच ऑफ द above office holders held their office for the term of 5 years. Answer would be A and B, B and C, C and D, A B C D. आप समझ रहे हैं किस काइंड के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। सो ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस कैन बी वेरी ब्यूटीफुली फ्रेम्ड इन द एग्ज़ाम। एंड समझ रहे होंगे आपकी क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको बस थोड़ा सा क्रिटिकली सोचना है एग्ज़ाम में, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज कर जाएंगे।
उसके बाद अनोदर थिंग आती है कि हमने तो बोल दिया, मैंने आराम से बोल दिया कि ठीक है आपके राज्यसभा के एमपीज़ कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 6 साल के लिए। बट मैं बोल कहाँ से रहा हूँ? क्या हमारा संविधान ऐसा कहीं पर लिखता है? नहीं। इट इज़ नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इट इज़ बाय द आरपीए एक्ट ऑफ 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपीए 1951। उसके अंदर ऐसा लिखा गया है कि जो मेंबर्स की टर्म होगी वो कितनी होगी, 6 साल के लिए होगी। आप लोग देखेंगे आरपीए के अंदर इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज आर देयर इन दी आरपीए, बट आरपी एज अ एक्ट इज़ नॉट इन अवर सिलेबस। जब आप लोग लॉ फैकल्टी का हिस्सा बनेंगे ना, जो कि आप बनेंगे, सो आप लोग अपने फाइनल सेम में जा कर के कहीं पर इलेक्शन लॉज पढ़ेंगे, एंड उस इलेक्शन लॉज में आप लोग क्या पढ़ेंगे, यू विल रीड द आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। या फिर वो सारे बच्चे जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पता होगा कि जीएस पेपर 2 जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट होता है, उसमें आरपीए एक पूरा का पूरा टॉपिक दिया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इज मेंशन द सेपरेट टॉपिक इन द सिविल सर्विसेज सिलेबस जीएस पेपर 2। ओके, बट इन द ड्यूअल एलबी एग्जाम नॉट रिक्वायर्ड सो मच डेप्थ, सो हम उतना ही बोलेंगे जितना कि हमारे लिए ज़रूरी है। एंड गाइज, अगर आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, देन आई वुड बी सेइंग दैट कि आई थिंक हम 30 तारीख तक आपका कोर्स होपफुली कंप्लीट करा देंगे। सो आई एम प्लानिंग कि 1 जुलाई को आप सभी का क्या होगा, 1 जुलाई को आई विल बी होल्डिंग अ कंप्लीट टेस्ट, लाइक जैसा डी में नहीं आता पूरा टेस्ट सीरीज काइंड ऑफ अ टेस्ट। एक आपको फुल फ्लैज 100 क्वेश्चंस का टेस्ट मिलेगा, जहाँ से हर सेक्शन से क्वेश्चन होंगे, फ्रॉम मैथमेटिक्स, फ्रॉम रीजनिंग, फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशन, करंट अफेयर, लीगल करंट अफेयर, एवरीथिंग, स्टैटिक जीके। ओके, पूरा का पूरा होगा, एंड दैट विल बी काइंड ऑफ एन ओपन टेस्ट, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जिसमें एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट, माई यूट्यूब कम्युनिटी एंड यू एज माई स्टूडेंट, एवरीबडी विल बी पार्टिसिपेंट। उससे क्या होगा, एक अच्छी सी प्रॉपर रैंक आ जाएगी ना, आपको पता चलेगा कि हाउ गाइज यू प्रिपेयरिंग। ठीक है, यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं उनको भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ऐप बनाने का देखो सबसे अच्छा फ़ायदा यही होता है कि आई कैन नाउ डू सच काइंड ऑफ अ थिंग जो पहले पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, सो ऑन 1 जुलाई होपफुली वी आर कंडक्टिंग द टेस्ट, एंड आई वुड बी रिलीजिंग द इन्फॉर्मेशन वेरी सून ऑन द यूट्यूब एंड द अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो जस्ट दैट इन्फॉर्मेशन विच आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म विद यू। अनोदर थिंग इज़ द नोट, आप इसको ध्यान में रखें। अगर लेट से एक राज्यसभा के मेंबर हैं एंड उनकी टर्म कितने साल है, 6 साल, बट उन्होंने 3 साल तो सर्व किया, फिर उनकी डेथ हो गई। अभी जो 3 साल बचे हैं, अगर हम इन 3 साल के लिए किसी मेंबर को इलेक्ट करते हैं बाय इलेक्शन के थ्रू, तो वो सिर्फ रिमेनिंग 3 साल ही एज एन एमपी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देन ही सर्व फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द वैकेंसी कोस्ट। उसके बाद आता है क्योरम, एंड क्योरम की जब हम लोग बात करते हैं तो क्योरम क्या होता है, क्योरम का मतलब होता है द मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, द बिजनेस ऑफ द हाउस। फॉर एग्जांपल, इस टाइम हमारे क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, 31। हमारे जो बैच के अंदर बच्चे हैं वो कितने बच्चे हैं, 31 स्टूडेंट आर देयर। सो अगर मैं ये बोल देता हूँ कि जब तक 15 स्टूडेंट नहीं आते हैं क्लास में, आई विल नॉट स्टार्ट द क्लास और आई विल नॉट टीच यू। सो ये मैंने क्या हो गया, मैंने अपनी क्योरम फिक्स कर दी क्लास की 15, कि जब तक इतने बच्चे नहीं आएंगे हम अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, अपनी प्रोसीडिंग्स को फर्दर स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, द सेम गोज़ विद द लोकसभा एंड द राज्यसभा। ये लोग बोलते हैं जब तक 1/10 ऑफ आवर टोटल मेंबरशिप नहीं होगी, वी विल नॉट स्टार्ट विद द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई एक बच्चा आकर के बैठेगा एंड हमारी संसद काम करना स्टार्ट कर देगी। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, 1/10 इज़ द रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, कोरम कितनी होती है, 1/10। उसके बाद सम फैक्ट कि द पॉलिटिकल पार्टी हैविंग मैक्सिमम मेंबर्स, बीजेपी, सेम इन द लोकसभा, लोकसभा में भी इन्हीं के पास है। उसके बाद आपको पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसका मतलब हो गया ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, आई मीन टू से चेयरमैन बन जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाते हैं। सो अगर आपने मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया एज अ वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर एक्स विल ऑटोमेटिकली बिकम द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उसके बाद सम फैक्ट लाइक करंट चेयरमैन कौन है, करंट डिप्टी चेयरमैन कौन है, लीडर ऑफ द हाउस कौन है, ओके, एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, एंड आपका सेक्रेटरी जनरल कौन है। दीज आर दी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि आप मेमोराइज कर सकते हैं। अब अगर इतना आपको क्लियर है, उसके बाद बात करते हैं कुछ वुमेंस के बारे में। जैसा कि पहली ऐसी महिला जो कि नॉमिनेटेड थी। आपको पता है हमारे जो एमपी होते हैं राज्यसभा के अंदर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड,
एक होते हैं नॉमिनेटेड। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऐसी पहली महिला जो कि नॉमिनेटेड एमपी थी हमारी राज्यसभा की। उनका नाम क्या था? रुक्मणी देवी अरुणांडले। ओके। एंड गाइस, जब मैं आपको इतनी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन करा रहा हूँ तो कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो कि सोचेंगे कि सर आप इतने सारी इन्फॉर्मेशन हमको दे रहे हैं बट हमारे ये याद नहीं होगा। सो अगर नहीं भी होता है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसको एटलीस्ट गिव इट अ बेयर रीडिंग ऑफ 5 6 7 टाइम्स। आप लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो द थिंग्स विल गेट स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सो जब आप एग्ज़ाम के अंदर जाएंगे और आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको लगा कि हाँ भैया ने रुक्मणी देवी करके कुछ तो बात हो रही थी, सो ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट होगा एंड यू विल होपफुली मार्क द राइट आंसर। आई एम एडवाइजिंग कि आप इसको याद कर लें, बट अगर याद नहीं कर पाते हैं इन केस तो एटलीस्ट इसको इतना रीडिंग दे लें तो कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं फिट हो जाए एंड जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है करंट वुमेन मेंबर्स। फिलहाल में हमारी राज्यसभा के अंदर कितनी महिलाएं हैं? 27। परसेंटेज के टर्म में देखें तो 11.73%, वेरी वेरी लेस। अब एक नया काफ़ी करंट में चर्चा में विषय आता है कि द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड ही इज़ द राघव चड्डा फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ आम आदमी पार्टी हेडेड बाय द केजरीवाल। ओके। उसके बाद हमारे करंटली ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ राज्यसभा, सबसे बुज़ुर्ग एंड सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले, एंड वो हैं हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, दी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन, ठीक है। एंड अनदर क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स होते हैं उनको टेलीवाइज कर सकते हैं, टीवी पर इनका प्रसारण कर सकते हैं? आंसर इज़ येस। पहले क्या होता था, दो सेपरेट चैनल होते थे, राज्यसभा टीवी होता था एंड एक लोकसभा टीवी होता था। एंड राज्यसभा टीवी पर क्या होता था, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स आती थी। बट अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या किया, दोनों को कंबाइन करके बना दिया गया है संसद टीवी, ठीक है। एंड जो क्वालिटी थी ना राज्यसभा टीवी की, जो लोग देखते होंगे उनको पता होगा, जो उसमें डिबेट एंड डिस्कशंस होते थे, माइंड ब्लोइंग। आई मीन सबसे ज़्यादा दुख मेरे को हुआ था इस चीज़ से, क्योंकि जो क्वालिटी थी, जो हमें कंटेंट देखने को मिलता था, वो शायद अब संसद टीवी पे नहीं मिलता एंड मिलेगा भी नहीं। उस क्वालिटी का कोई मैच नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द स्टूडेंट जो कि RS टीवी देखा करते थे, उनके लिए बहुत बड़ा लॉस था जब इन लोगों ने क्या किया, कंबाइन कर दिया दोनों चैनल्स को। उसके बाद जो अनोदर चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन करके आती है वो आती है इलेक्शन। अब तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो थे हमारे फैक्ट। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होंगे हमारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, फैक्ट से थोड़े कम बनते हैं, ठीक। सो आप लोग देखेंगे कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। इससे पहले हम लोगों ने प्रेसिडेंट डिस्कस किया था, हमने वाइस प्रेसिडेंट डिस्कस किया था, हम लोगों ने और क्या डिस्कस किया था, हम भी ऑल्सो डिस्कस द काउंसिल ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, हमने पूरा एग्जीक्यूटिव, हमने गवर्नर डिस्कस किया था, एवरीथिंग। हम लोग एक चीज़ देख रहे थे, वेदर इट इज़ प्राइम मिनिस्टर, वेदर इट इज़ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लेट्स से MP ऑफ द राज्यसभा, हर जगह ये एक टर्म लिखी मिलती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो आपको ये याद में रखना है कि इनका इलेक्शन भी कैसे होता है, बिल्कुल सेम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था प्रेसिडेंट के केस में, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आपसे पूछ सकते हैं इसका नाम, मेथड का। उसके बाद आता है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल का कॉलेज का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो कि वोटर बनेंगे, ठीक है। वोटर कौन होंगे, कौन कौन वोट डालेगा? क्या आप वोट डालेंगे? क्या मैं वोट डालूंगा? नहीं, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड जब मैं बात करता हूँ, इट विल इंक्लूड बोथ स्टेट एज वेल एज यूटीज़। सो ये लोग वोट डालेंगे। एंड आपको पता है कि स्टेट के अंदर क्या होती है, लेजिस्लेचर होती है स्टेट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर, ओके, स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक होती है आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो रिमेंबर, काउंसिल का कोई रोल नहीं है, काउंसिल को आप ख़त्म कर दीजिए, काट दीजिए। असेंबली, असेंबली के अंदर क्या, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, तो ऑल्दो अब तो नॉमिनेटेड नहीं होते, असेंबली के अंदर भी ख़त्म हो गया नॉमिनेशन वाला प्रोसेस बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बट वो डिफरेंट थिंग, आप सोच, तो ये भी नहीं होते, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर मैं इसको इन शॉर्ट में लिखूंगा, आई विल राइट इलेक्टेड MLAs ऑफ बोथ स्टेट्स एंड यूटी। इलेक्टेड क्योंकि सिर्फ चुने हुए लोग, ना कि नॉमिनेटेड। MLA दैट इज़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MPs का, एंड यहाँ पर
एमपीज़ का भी कोई रोल नहीं है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी वोटिंग नहीं करते, ओनली इलेक्टेड एमएलएज। एंड गाइस क्वेश्चन पता है यहाँ पर क्यों कन्फ्यूज़न पता है यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ा, वो अलग था। वीपी का पढ़ा आपने, वाइस प्रेसिडेंट का, वो अलग था। अब आप लोगों ने राज्यसभा का भी पढ़ लिया। अब एग्ज़ाम के अंदर थोड़ा मिक्सअप हो जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट आता है आप लोग वीपी वाले में टिक कराते हैं, जहाँ पर वीपी आता है आप हो सकता है राज्यसभा वाले को टिक मार दें। सो ये कन्फ्यूज़न होता है। सो आई विल रिकमेंड कि जब मैं आपको सारे चैप्टर्स करा दूंगा, सो ऑल्दो आई विल प्रोवाइड यू द चार्ट फ्रॉम माई साइड एज वेल, बट आप खुद से भी, फॉर द यूट्यूब पीपल, आप खुद से भी इसको क्या कर सकते हैं, इसको अपना सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप इसको एक चार्ट के फॉर्म में बना लें तो आप एक साथ आपके पास पूरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगी। सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिवाइज एंड इफ़ इट इज़ क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अबाउट द क्वालिफ़िकेशंस, यानी कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन होती हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती है, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट मेंशन किया है, बिकॉज फॉर द एग्ज़ाम पर्पस ओनली दिस पॉइंट इज़ द मोस्ट रेलेवेंट फॉर यू। ऐसे जैसे कि सिटीज़न ऑफ इंडिया, दिस, सो मैनी कंडीशंस आर देयर। अगर आपको पढ़नी है आप आरपीए पढ़ सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आप पढ़ सकते हैं 1951, या फिर आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत। सो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से तो इस एग्ज़ाम के लिए जो मैंने आपको करा रहा हूँ पीपीटी की फॉर्म में, वो सफिशियंट है, ठीक है। सो आप लोग क्या करेंगे, एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे, एज को, जो मिनिमम एज है, ये तो वैसे भी इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि राघव चड्ढा वाला जो अपॉइंटमेंट है वो इतनी ज़्यादा चर्चा में है। सो प्रोबेबली दे में आस्क यू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। सो आपको पता हो कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको राज्यसभा का मेंबर चुनना है या फिर इलेक्ट करवाना है, हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि उनकी एज 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस दैन 30 ईयर्स। अगर ऐसे हैं देन ही इज़ नॉट एलिजिबल। इफ़ दिस मच इज़ क्लियर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल की जब हम बात करते हैं इट मीन्स द लोकसभा, ओके। हाउस ऑफ द पीपल डेट मीन्स लोकसभा। सो अगेन जैसा हमने राज्यसभा के केस में क्या था, देयर आर सम फैक्ट, दिस ये फैक्ट हैं, सब आपको याद करने हैं। उसके बाद ऐसा कोई स्पीकर का नाम जिन्होंने 2 बारी एज अ स्पीकर का रोल प्ले किया है, एंड ही इज़ नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। एंड ऑल्दो ही हैज़ नॉट होल्ड द ऑफिस फॉर द कंज्यूकेटिव टर्म, कंज्यूकेटिव का मतलब है लगातार नहीं किया, हो सकता है पहले एक बार ये लोग स्पीकर हों, उसके बीच में कोई और व्यक्ति बन गया हो एंड फिर ये बन गए हों, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ओके। एंड ही और शी वट एवर इट इज़, आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी कन्फर्म अबाउट द जेंडर, सो ऑल्सो सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा पूछ सकते हैं, ऐसे स्पीकर का नाम बता दीजिए जिन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर भी सर्व किया था। सो नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद फर्स्ट डिप्टी स्पीकर M.A. अयंगार, जो कि बाद में जाके आपके स्पीकर भी बने थे। उसके बाद बात करते हैं अबाउट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस विच इज़ 552। एंड एक काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन आता है अबाउट द एंग्लो इंडियन, क्योंकि एंग्लो इंडियन क्या होता है उनका ख़त्म हो चुका है। सो कन्फ्यूज़न ये हो रहा है बच्चों को कि बच्चे पूछते हैं कि भैया ये 550 हो गया या फिर 552 है। सो इट इज़ 552 ओनली। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आएगा हैव टू मार्क 552, ओके। एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट हम अभी इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो हैव सम फेथ ओवर मी, हैव सम पेशेंस, ओके। सो उसके बाद आता है प्रेजेंट स्ट्रेंथ विच इज़ 543। अगेन ऐसा स्टेट जिसके अंदर मैक्सिमम मेंबर्स होंगे, उत्तर प्रदेश। अगेन द थैंक्स गोज टू द पॉपुलेशन। एंड स्टेट विद द मिनिमम मेंबर्स, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब असेंबली के इलेक्शन, सॉरी जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन टारगेट ही रहता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूपी जीत लिया मतलब हाफ ऑफ द वॉर इज़ ओवर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अबाउट द मेंबर्स फ्रॉम यूटी, किस यूटी से कितने मेंबर हैं। टोटल मेंबर्स फ्रॉम यूटी आर 19। आप अगर नंबर की बात करेंगे सो यू विल सी दैट द मैक्सिमम आर फ्रॉम द एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड मिनिमम कहाँ से होंगे, यहाँ से होंगे, ठीक है। अंडमान निकोबार से कोई भी नहीं, 1 है, ओके। सो आप लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, आप लोग यहाँ पर एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे कि एक क्वेश्चन बन सकता है कि
Which UT has the maximum representation into the Lok Sabha? The answer would be NCT of Delhi. अब आप लोगों ने क्या देखा था राज्यसभा के केस में और लोकसभा के केस में? लोकसभा राज्यसभा के केस में कौन सी ऐसी यूटी थी? इट इज़ व्हाट? हाँ बताइए, इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर. एंड लोकसभा के केस में इट इज़ एनसीटी ऑफ Delhi. Okay, hopefully the things are clear till here. So hopefully my students are getting everything. And उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो आते हैं. अगेन दीज आर द फैक्ट. टर्म कितनी होती है लोकसभा की? 5 साल होती है. बट इट इज़ नॉट लाइक वाटर टाइट. ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गई 5 साल ही होगी, नहीं. इट कैन ऑल्सो बी डिजोल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनी टाइम. ऑलवेज by the advice of the COM, that is the Council of Ministers, headed by the Prime Minister. You guys know everything. ठीक है. उसके बाद अगेन क्योरम, सेम 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. उसके बाद करंट स्पीकर, करंट डिप्टी स्पीकर, इट इज़ वेकेंट. लीडर ऑफ द हाउस नरेंद्र मोदी, डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस राजनाथ सिंह जी, लीडर ऑफ अपोजिशन अगेन वेकेंट. राहुल गांधी मत टिक कर देना अगर ऑप्शन में आ जाए, ठीक है. बहुत सारे बच्चे राहुल गांधी पे मार्क करके आएंगे, बट इट इज़ वेकेंट. सेक्रेटरी जनरल उत्पाल कुमार सिंह. फर्स्ट वुमेन स्पीकर. देखो वुमेन से रिलेटेड क्या होता है, और ये सेक्रेटरी जनरल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंस इट्स माई ड्यूटी टू प्रोवाइड यू विद द फैक्ट, सो आई एम प्रोवाइडिंग यू. सो आप लोग एक चीज़ देखें, वुमेन वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सो व्हेन आई सेज फर्स्ट वुमेन स्पीकर, सो फर्स्ट वुमेन स्पीकर इज़ होम? शी इज़ मीरा कुमार. ओके, मीरा कुमार. एंड अगर वो आपसे पूछें कि अब तक के इतिहास में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो कि स्पीकर बनी हैं लोकसभा का, सो देर आर 2, मीरा कुमार एंड सुमित्रा महाजन जी. ओके. एंड देन वो आपसे पूछते हैं कि डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट एनी मेंबर्स टू द लोकसभा? द आंसर वुड बी नो, नेवर. अगर ये क्वेश्चन 2019 अमेंडमेंट से पहले आता, यू विल से येस टू एंग्लो इंडियंस. बट अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब लॉ ऑफ लैंड चेंज हो चुका है. सो वी कैन से दैट इट इज़ इट इज़ व्हाट, नॉट इलेक्टेड, सॉरी नॉट नॉमिनेटेड. अब वेरी वेरी फेमस एंड बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा. सो थोड़ा सा फोकस के साथ अब लोग यहाँ पर समझेंगे. अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द एंग्लो इंडियन इन लोकसभा. एंग्लो इंडियन क्या होता था? फ्रॉम द ब्रिटिश कम्युनिटी हु नाउ रिसाइड इन इंडिया, लाइक द पार्ट ऑफ इट एंग्लो इंडियन. सो क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम थी, सो इनके लिए चुनाव जीत करके आ पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत कम जनसंख्या थी इन लोगों की. इसलिए इनके लिए रिजर्वेशन रखा गया था 2 सीट्स का, कि 2 सीट्स पे हम लोग एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर देंगे. बट अब इसको हटा दिया गया है, अब ऐसा प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया गया है. इन 2019 पार्लियामेंट कम्स अप विद द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. इसके अंदर क्या हुआ था, 2 एंग्लो इंडियंस को जो रिजर्वेशन मिलता था उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको टर्मिनेट कर दिया, उसको एंड कर दिया. ठीक है. एंड नॉट ओनली फ्रॉम द लोकसभा बट ऑल्सो फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर. सो आपसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड. अब देखो यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कितना अच्छा बनेगा. द पॉसिबल क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड. सबसे पहले, हाउ मैनी मेंबर्स आर बीइंग अपॉइंट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द लोकसभा? यू विल से 0, नो वन. एक स्टेटमेंट आ जाएगा, देर आर टू एंग्लो इंडियंस. एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बन सकता है वो ये होगा दैट 2 एंग्लो इंडियंस आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द लोकसभा. यू विल से नो, दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके. उसके बाद अनदर क्वेश्चन बन सकता है, द रिजर्वेशन फॉर द 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स इन टू द लोकसभा वाज curtailed इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 102, 103, 104, 105. आंसर वुड बी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ओके. उसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट, एंड जो मैं बता रहा हूँ ना आपको क्वेश्चंस, होपफुली स्मार्ट पीपल वुड बी राइटिंग इट ऑन समवेयर लाइक ऑन अ पीस ऑफ पेपर. अदरवाइज ऐसे सुन करके एज अ स्टोरी फॉर्म में सुनेंगे तो भूल जाएंगे. फ़ायदा तभी है तब आप इसको कहीं पर लिखते चलें. ओके. आफ्टर द 104th फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा दैट द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल, द इफेक्ट ऑफ 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 इज़.
आपको 4 ऑप्शन देगा। 2 ऑप्शन आपको कुछ भी दे देगा इधर उधर से, 2 ऑप्शन में आपको दे देगा दैट द नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस वाज curtailed फ्रॉम द लोकसभा, एंड वहाँ पर ख़त्म कर देगा, लोकसभा लिख करके स्टेटमेंट ख़त्म कर देगा। एंड दूसरे में दे देगा दैट एंग्लो इंडियंस विल नॉट बी नॉमिनेटेड इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या मार्क करना है बच्चे, पता है क्या करेंगे गलती से, सिर्फ बस लोकसभा देख लिया, हाँ 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 ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा लोकसभा लोकसभा यही तो सुना था हम लोगों ने सब जगह, एंड उसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बट नो माय डियर, ऐसा नहीं करना है। आपको किस पे टिक करना है, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर भी होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। बहुत टफ नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, सबको पता है एंग्लो इंडियन वाला सिनारियो, बट छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जो आपको समझनी होंगी, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जामिनर हमेशा इन बारीकियों में से बनाता है। पढ़ते सब हैं, बट जो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेता है अपने माइंड में, वो सफल हो जाता है। अब क्योंकि डीयू का कंपटीशन उतना आसान नहीं रहा, आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते डीयू, ठीक है। डेट इज़ वाई आई थॉट आई एम अपलोडिंग दिस ऑन द यूट्यूब, बिकॉज मेरे को लगता है बच्चों की, आप लोग, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों ने नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, सो मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा पीछे रह जाएं या फिर आप गलत मार्क करें। सो डेट इज़ वाई आई एम प्रोवाइडिंग यू द लेक्चर ऑन द पार्लियामेंट, अदरवाइज इट इज़ अ फुल फ्लेज कोर्स विच इज़ फुल फ्लेज लेक्चर्स विच इज़ डेडिकेटेड टू माई कोर्स स्टूडेंट। वैसे कोर्स भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग। इसमें आपके सारे ही सब्जेक्ट कवर होंगे इन माई पेड क्रैश कोर्स। एवरीथिंग विल बी कवर्ड, आपका करंट अफेयर कवर होगा, आपका मैथमेटिक्स कवर होगा, लीगल सारा कुछ होगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, एवरीथिंग विल बी देयर। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा, एवरीथिंग विल बी देयर इन द कोर्स। एंड ये कोर्स अभी भी चल रहा है, आप इसको मेरे ऐप से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक कहाँ पर मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। आप लोग मेरी ऐप पे जाएं एंड ऐप से देख के ख़रीद लें, क्योंकि इन दी एंड क्या मैटर करेगा, 2000 रुपीज़ और योर सिलेक्शन इन टू द फैकल्टी ऑफ लॉ, ऑलवेज सिलेक्शन विल मैटर्स यू द मोस्ट। ठीक है, सो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। जो लेक्चर्स आपके हो चुके हैं उन आपको उनकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, और बाकी के लेक्चर्स आप लोग अगर आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर लेते हैं लाइक, तो जो हमारे बाकी के लेक्चर्स होंगे उनमें आपको लाइव एक्सेस मिलेगा क्लास के अंदर, एंड जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स होंगे वो आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में अवेलेबल होंगे। ऐसा हम कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। सो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ फ्रेंकली एडवाइस एज अ फ्रेंड। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इलेक्शन की। जब हम लोग इलेक्शन की बात करते हैं, अब तक आप लोगों ने देखा हम लोग क्या बात कर रहे थे, ऑलवेज हमने जब प्रेसिडेंट पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, एमपी ऑफ राज्यसभा पढ़ा, हर जगह एक ही बात आ रही थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बट इस बार कुछ नया निकल कर के आया, इट इज़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। सो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो किस मेथड पे बेस्ड है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जिस भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वोट मिलेंगे इन कंपेरिजन टू द अदर विल बी वोन। लाइक आप 30%, आप 25% पर भी जीत सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता था, 50+। बट यहाँ पर आप अगर 25% भी हैं और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो 25 से कम हैं, आप जीत जाएंगे। ओके, उसके बाद बात करते हैं अबाउट द इलेक्टोरल कॉलेज। एंड इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है, कौन कौन वोट करेंगे। अब तक आपने देखा नाइदर यू नॉर मी कैन वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा मेंबर। बट जब लोकसभा की बात आती है, जब हाउस ऑफ द पीपल, इसीलिए तो इसको बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल और द पॉपुलर हाउस, क्योंकि इसमें हर किसी को वोट डालने का अधिकार है। एडल्ट यूनिवर्सल सफ्रेज, एवरीबडी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज कैन वोट इन द इलेक्शन। उसके बाद अगर क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें एज कितनी आती है आपकी, 25 ईयर्स, ठीक है। 25 ईयर्स इज़ द एज। अब आप लोगों ने देखा होगा इट्स वेरी स्ट्रिक्ट। देर वॉज एन एमपी ऑफ द लोकसभा, वो आजम खान जी के बेटे थे। सो वो क्या हो रहा था, लाइक उनकी एज 25 से कम थी, सो उनका आई थिंक जो पूरा का पूरा सीट थी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे, ठीक है, इसीलिए, क्योंकि उनकी वो एलिजिबिलिटी ही नहीं थी। उसके बाद बात करते हैं ओथ बाय एमपी। ये जो एमपी हैं इनको यहाँ पे होता ओथ टू एमपी, ठीक है, इसको 2 कर लीजिए, ओथ टू एमपी, यानी कि इनको शपथ कौन दिलाएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एमपी किसके थ्रू शपथ लेंगे, बिफोर द प्रेसिडेंट और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस। इफ़ दिस इज़ क्लियर टिल हेयर,
उसके बाद आप एक अनोदर कॉन्सेप्ट समझेंगे जो आएगा डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, यानी कि जो हमारे एमपीज़ होते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ, इनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ठीक है, डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। कैसे, कौन कर सकता है? सबसे पहले कौन करेगा डिस्क्वालीफाई? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति पितामह। ठीक है, he can disqualify any MP on the following grounds. And my question is whether the president कैसे डिस्क्वालीफाई करेंगे? whether the president of India will disqualify the MP on its own discretion, or by the advice of the Council of State, by the Supreme Court of India, by the Prime Minister, by whom? by the Vice President advice, by the advice of the Speaker. किसकी एडवाइस से होगा? थ्रू द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड इट विल बी बाइंडिंग ओवर द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट हैज़ टू वर्क एज पर दिस एडवाइस ओनली। ठीक है, एडवाइस विल बी बाइंडिंग एंड द प्रेसिडेंट डिसीजन इज़ फाइनल। प्रेसिडेंट डिसीजन इज़ फाइनल से मतलब है जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। इसका मतलब नॉन जस्टिसिएबल, इसका मतलब नो जुडिशियल रिव्यू, नो जुडिशियल रिव्यू। यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड चैलेंज द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है। होपफुली यहाँ तक आप सभी बच्चों को सब कुछ क्लियर होगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग कि मैं जितना सिंपल आपको समझा सकता हूँ उतना समझा दूँ। अदरवाइज़ मैं भी चाहता तो फुल फ्लैज कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कर देता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को करना बहुत आसान काम है, बट उन्हें सिंप्लीफाई करना उतना ही टफ होता है। ठीक है बच्चों, सो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है बेटा कि आप सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझ पाएँ, बिकॉज आई नो अभी अभी आपने शुरू किया है, अभी आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बट हिम्मत रखें, यू विल क्लियर दिस एग्ज़ाम। हिम्मत रखें, अच्छे से मेहनत करते रहें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी फॉलोइंग कैटेगरीज, जिसमें आप प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? डिस्क्वालीफाई कर सकता है ऑन दी एडवाइस ऑफ द ईसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विच विल बी बाइंडिंग ओवर द प्रेसिडेंट, शैल बी बाइंडिंग ओवर द प्रेसिडेंट। अब देखो, यहाँ पर होने को बहुत सारे ग्राउंड हो सकते थे, आरपी के अंदर भी मेंशन है, लक्ष्मीकांत के अंदर भी मेंशन है, बट मैं सिर्फ उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो कि मेरे को लगता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अगर पढ़ने में और इंटरेस्ट है, आप आरपीए फॉलो कीजिए, पूरा प्रॉपर एक्ट है। अब देखो, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, एक्सेप्ट डेट ऑफ अ मिनिस्टीरियल पोस्ट। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा लाइक अगर अनसाउंड माइंड के हैं, इन डिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, या फिर अगर वो इलेक्शन ऑफेंसेस के लिए गिल्टी हैं, लाइक कुछ माल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, लाइक वोटर्स को पैसे दे रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी करा रहे थे, एनीथिंग, सो ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। उसके बाद या फिर उन्होंने एक ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए उनको कोर्ट ने 2 या 2 से ज़्यादा साल की इम्प्रिजनमेंट सुना दी है, उस केस में भी ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। या फिर उनको अगर किसी सोशल क्राइम के लिए पनिश किया गया है, सोशल क्राइम में कैसे आते हैं आपका अनटचेबिलिटी, या फिर डाउरी, या फिर सती, सो इस तरीके के अगर इस तरीके के अगर सोशल क्राइम्स हैं, सो ऑल्सो ही विल बी डिस्क्वालीफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द ईसीआई, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग। ठीक है, इफ़ इट इज़ क्लियर टिल हेयर, कमिंग ऑन टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क ओवर इट, कभी भी पूछ सकते हैं मार्क ओवर इट, हैव अ स्टार ओवर इट। ठीक है, सो एंटी डिफेक्शन लॉ, इट इज़ व्हाट? एंटी डिफेक्शन लॉ। अब इसके आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है एंटी, इसका मतलब हम लोग, डिफेक्शन कुछ गलत चीज़ है, उस डिफेक्शन को बचाने के लिए हम लोग कैसा लॉ लाए हैं? एंटी डिफेक्शन, जिससे डिफेक्शन रुक जाए। ये क्या होता है डिफेक्शन? इसका सिंपल सा मतलब ये है, ये लॉ आया है पॉलिटिशियंस के लिए। ठीक है, क्या होता था कि पॉलिटिशियंस एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट होते रहते थे फॉर सम बेनिफिट्स। किसी पार्टी ने मिनिस्टीरियल पोस्ट ऑफर कर दी, वहाँ चले गए, उस पॉलिटिकल पार्टी ने ये ऑफ़र दे दिया, वहाँ चले गए, आया राम गया राम। ठीक है, सो आप लोग क्या करेंगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज़ 10th शेड्यूल। ये कहाँ पर मेंशन है? इन द 10th शेड्यूल। ऑल्दो बेटा मैं आपको सारे के सारे शेड्यूल सेपरेटली भी पढ़ाऊँगा, बट
आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं फॉर अ पीरियड कि एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ पर दिया गया है आपको, 10th शेड्यूल के अंदर दिया गया है, ओके। एंड इट इज़ इंसर्टेड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ सकते हैं कि 10th शेड्यूल कब आया, एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया, बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट शेड्यूल वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड ये जो 10th शेड्यूल है इसको हम पॉपुलरली किस नाम से बोल देते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक। उसके बाद इसका एम क्या है, prevent MPs from switching political parties for any personal motive, and it applies for both parliament as well as to the state legislature। इसका सिर्फ फलसा मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ MPs पर ही लागू नहीं होगा, MLAs पर भी लागू होगा। असेंबलीज से मेरा मतलब है MLCs पर भी लागू होगा, फॉर एवरीथिंग। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पर असेंबली की जगह मुझे क्या लिखना था, लेजिस्लेचर, ओके, स्टेट लेजिस्लेचर कर सकते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिसाइड कौन करेगा किसको डिस्क्वालीफाई करना है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है, बट जब भी डिफेक्शन के केस में किसी को डिस्क्वालीफाई करना हो तो जो अथॉरिटी होती है स्पीकर, वो कौन होती है, हमारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। कौन होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कौन होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं आपके स्पीकर, एंड राज्यसभा के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं आपके चेयरमैन, ओके। सो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन द केस ऑफ द राज्यसभा। यहाँ तक क्लियर है, डिसाइड कौन करेगा, स्पीकर। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब क्या हमने पहले देखा था कि जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होता था वो फाइनल होता था, डेट मीन्स नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बट हियर आई एम सेइंग दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ किहोटो होलाहन वर्सेस जज चुल्ला 1992, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, बट आप खुद से कर लेना। ये वाला जो केस था, इस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ये बोल देते हैं कि जो स्पीकर का डिसीजन होगा ना अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ डेट विल बी सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट बोलता है कि जब भी स्पीकर एज इस पूरे मैटर में वो अपना एक्ट करते हैं, ही वर्क्स लाइक अ ट्राइब्यूनल, so anybody can challenge the decision of the speaker on the ground of malafidness, like हो सकता है कि अगर उनकी पार्टी का कोई हो तो उस केस में फेवर हो, या फिर अगर उनकी पार्टी का नहीं है तो कुछ और स्पीकर कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, पॉलिटिकल, क्योंकि इट्स ऑल पॉलिटिकल ड्रामा। सो सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस हेल्ड दैट इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस नेम आप हमेशा याद करके जाएंगे, ठीक है, इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। बट यहाँ पर एक लूप होल है लॉ के अंदर, क्यों, क्योंकि लॉ ने कहीं पर भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं की कि स्पीकर को कितने समय के अंदर डिसीजन देना है। सो ऐसा हो सकता है अगर स्पीकर की पॉलिटिकल पार्टी का केस है, सो हो सकता है वो उसको एक हफ्ते में भी ना, लाइक वो उसको हो सकता है सुने ही ना, ठीक है। ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि हो चाहे तो वो उसको एक महीने में भी डिसीजन ना दे, चाहे तो वो उसको एक घंटे में डिसाइड कर दे, इट्स अप टू द स्पीकर। सो देर इज़ नो टाइम लिमिट विच इज़ फिक्स, एंड जब तक स्पीकर डिसाइड नहीं करेगा यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जब तक स्पीकर डिसाइड नहीं करेगा आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। सो स्पीकर इज़ हैविंग वेरी ब्रॉड पावर इन द केस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, इफ़ इट इज़ क्लियर टिल हियर। Now coming on to another important topic, that is the presiding officer of the parliament। देखो प्रिसाइडिंग, कोई भी सभा है, कहीं पर भी अगर कोई मीटिंग है तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि पूरी को मैनेज करके चलता है, ठीक है। लोकसभा के अंदर क्या होती है, एक काइंड ऑफ मीटिंग होती है, एक हमारी पंचायत है ना, और नेशनल लेवल हम बोल सकते हैं। सो लोकसभा एंड राज्यसभा, सबसे बड़ी पंचायत हमारे देश की लोकसभा एंड राज्यसभा। सो स्पीकर इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। So it is clear till here. So now moving on to stating the speaker of the Lok Sabha, ठीक है। whatever I am discussing here it is important for you and have a note of it। सबसे पहली चीज़, जो स्पीकर होंगे हमारे लोकसभा के, he will be the MP, he will be the member of the parliament, specifically talking to he will be the MP of the Lok Sabha।
लोकसभा में से ही एक किसी को हम लोग क्या करते हैं, स्पीकर चुन करके भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, कौन डिसाइड करेगा, इट इज़ द डेट इज़ फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग ये सोचेंगे कि इलेक्शन, अगर ऑप्शन में इलेक्शन कमीशन देते तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद रिमूवल, देखो रिमूवल इम्पोर्टेंट होता है। हम लोगों ने अब तक प्रेसिडेंट का रिमूवल पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल पढ़ा, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट के केस में भी पढ़ ही लिया एक तरीके से। आप लोग आने वाले टाइम में पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल। सो इतने सारे रिमूवल आपके पास हो जाएंगे, सो यू विल गेट कन्फ्यूज, यू विल गेट लॉस्ट, ठीक है। सो आप यू विल फील लाइक कंफ्यूज हो गया। एंड एग्ज़ाम में ऐसा होता है, आपसे पूछ रहा है प्रेसिडेंट का, आप करके आ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट का, पूछ रहा है वाइस प्रेसिडेंट का, आप करके आ रहे हैं स्पीकर का, ठीक है। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न इन द एग्ज़ाम। सो जैसा मैंने पहले बताया फिर बताऊँगा, एक चार्ट के फॉर्म में सबको एक जगह कहीं पर लिख लेना फॉर द यूट्यूब पीपल, एंड दोज हु आर द पार्ट ऑफ माई बैच, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द इन्फॉर्मेशन, ठीक। उसके बाद बात करते हैं रिमूवल कैसे होते हैं। आ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। आई थिंक ऑल द दिस मेजोरिटी इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट, सो नो नीड, क्योंकि पहले डिस्कस कर चुके। उसके बाद बात करते हैं रेजिग्नेशन। अगर इनको रेजिग्नेशन अपना देना है तो किसको देंगे, ही विल रिज़ाइन टू द स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। अब आप लोग देखो, स्पीकर किसको रिज़ाइन करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर को। एंड डेप्यूटी स्पीकर को अगर रिज़ाइन करना है वो किसको रिज़ाइन करेंगे, स्पीकर को। अब अगर राज्यसभा के चेयरमैन को रिज़ाइन करना है वो किसको रिज़ाइन करेंगे, प्रेसिडेंट को। और अगर डिप्टी चेयरमैन को रिज़ाइन करना है वो किसको करेंगे, चेयरमैन को, ठीक है। इस तरीके से इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। आप ये मत सोचना कि स्पीकर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करते हैं, नो, ही गिव हिज रेजिग्नेशन टू द डेप्यूटी स्पीकर। एंड व्हेन द लोकसभा डिजोल्व, लोकसभा का सेशन डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, क्या होगा, ही डजेंट वैकेट हिज ऑफिस। तो ऐसा नहीं होता कि वो अपना ऑफिस खाली कर देंगे, नो, ही कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑफिस टिल द लोकसभा मीट्स, सॉरी, टिल द न्यू इलेक्शंस कंप्लीटेड इन द लोकसभा मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ही इज़ हैविंग अ कास्टिंग वोट। लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं दोनों ही हाउस के, उनके पास क्या होती है, कास्टिंग वोट होती है, ठीक है। कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट से मेरा क्या मतलब है, यानी कि ही डज़ नॉट वोट ऑन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस बट ही इज़ हैविंग अ कास्टिंग वोट। फॉर एग्जांपल देर आर 10 मेंबर्स इन द लोकसभा फॉर एग्जांपल, एंड 5 लोगों ने किसी बिल के फेवर में वोट किया है, इन फेवर, एंड 5 मेंबर्स हैव वोट इन अगेंस्ट। सो अब ये टाई हो गया ना, लाइक 5-5, कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा। सो लोकसभा स्पीकर इज़ हैविंग अ कास्टिंग वोट। अगर वो चाहें तो अपनी वोट इन फेवर में भी डाल सकते हैं, अगर चाहें अपनी वोट इन अगेंस्ट में भी डाल सकते हैं, ओके। सो जहाँ पर भी वो लोग वो डाल देंगे वो ही चीज़ें हो जाएगी। सो इसको बोला जाता है कास्टिंग वोट। उसके बाद जो अनदर इम्पोर्टेंट चीज़ निकल करके आती है वो आती है डिसाइड ओवर द मनी बिल। इसका मतलब एक बिल मनी बिल होगा या फिर नहीं, हु विल डिसाइड, आई विल डिसाइड, यू विल डिसाइड, प्रेसिडेंट विल डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल डिसाइड, द लॉ मिनिस्टर विल डिसाइड, हु विल डिसाइड, स्पीकर विल डिसाइड, ठीक है। स्पीकर विल डिसाइड वेदर अ बिल विल बी अ मनी बिल और अ नॉट। So even if there is a piece of paper and speaker think it's a money bill, it will be a money bill. Neither you nor I nor court, nobody can do anything in this regard, ठीक है। It is not justiciable in any court of law. So it's kind of a पत्थर की लकीर, he will decide on the money bill. उसके बाद हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जो MPs की डिस्क्वालिफिकेशन होती है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन कौन करता है, स्पीकर, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ दैट ही प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग। आपको पता है बहुत बार लोकसभा एंड राज्यसभा में क्या होता है, किसी बिल को लेकर के डेडलॉक बन जाता है, ठीक है। एंड उस टाइम पे क्या होता है, प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। सो जॉइंट सिटिंग का मतलब होता है कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों को एक साथ बुला लिया कि एक साथ आ जाओ और चलो बातें करो। सो उसमें जो प्रिसाइड करेगा वो कौन करेगा, स्पीकर करेगा, ना कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ओके। स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। उसके बाद ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप।
another important point is that salary charged upon consolidated fund of India. Okay, salary charged upon consolidated fund of India and अपॉइंट चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज़, जितने भी पार्लियामेंट। एंड देखो सबसे पहले इसको समझ लो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर हमें किसी भी ऑफिस को इंडिपेंडेंट बनाना है, हम उसका जितना भी खर्चा होगा, जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, हम सारा CFI पे डाल देंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे डाल देंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव से फ्री होता है, इसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं होता, सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता, वो चाह करके भी इस फंडिंग को रोक नहीं सकते। ठीक है, सो किसी को फ्री बनाना हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा एक्सपेंडिचर ही CFI से आता है। ठीक है, तो हम एग्जीक्यूटिव से फ्री करने के लिए इसको CFI में डाल देते हैं। सो हिज ऑफिस, हिज सैलरी इज चार्ज अपॉन CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड जितने भी पार्लियामेंट की कमिटीज़ होती हैं, उन सबके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? द स्पीकर। एंड इनका जो वर्क एंड कंडक्ट होता है, आप उसको लोकसभा में डिस्कस या फिर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। एंड देयर इज़ नो स्पेशल ओथ, जो MP वाली ओथ होती है, डेट विल सफाइज एंड नो स्पेशल ओथ इज़ देयर। उसके बाद जो अनदर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, हमने समझ लिया स्पीकर। एंड वंस वी आर क्लियर विद द स्पीकर, टू अंडरस्टैंड डेप्यूटी स्पीकर विल बी अ वेरी ईजियर जॉब फॉर अस। ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा हम लोगों के लिए डेप्यूटी स्पीकर को समझ पाना। सो आप लोग देखें, सबसे पहले इलेक्शन कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। स्पीकर का इलेक्शन कौन डिसाइड करता था? प्रेसिडेंट। सो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग इलेक्शन कमीशन को बीच में मत लेकर के आना। ठीक है, स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति। एंड डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर। उसके बाद इनकी सैलरी भी कहाँ से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। इनको किस तरीके से रिमूव किया जाएगा? सेम एज दैट ऑफ द स्पीकर। उसके बाद ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? टू द स्पीकर। एंड जब तक ये प्रिसाइड नहीं करते हैं, ही विल एक्ट लाइक अ नॉर्मल MP। एंड जैसे ही डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के स्पीकर का रोल परफॉर्म करना शुरू करते हैं, ऑल द पावर्स प्रिविलेजेस विच आर गिवन टू द स्पीकर विल बी प्रोवाइडेड टू द डेप्यूटी स्पीकर व्हेन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमेटी। देखो, जब भी किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर अपॉइंट हो जाएंगे, ही विल ऑटोमेटिकली बिकम इट्स चेयरमैन, ऑटोमेटिकली। एंड देर इज़ नो स्पेशल ओथ फॉर हिम। ठीक है, इफ़ इट इज़ क्लियर टिल हियर, देन आते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा में क्या होता है? हम लोगों ने देखा, सबसे पहले होते हैं आपके स्पीकर, अगर स्पीकर भी नहीं है तो होते हैं आपके डेप्यूटी स्पीकर। लेट से दोनों ही नहीं हैं, फिर कौन होगा? इसीलिए ऐसे सिचुएशन के साथ डील करने के लिए क्या होता है? पैनल ऑफ चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है बाय द स्पीकर। स्पीकर अपॉइंट द पैनल ऑफ चेयरपर्सन। एंड यहाँ पर क्या होता है? एक्ट व्हेन स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर एब्सेंट बट नॉट व्हेन दे आर वेकेंट। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सो आप समझें, वेकेंट होती है तब, वेकेंट कब होती है? लेट से अगर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आए नहीं, छुट्टी मार ली, एक काइंड ऑफ हॉलीडे पर हैं, लीव पर हैं, सो ये लोग क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे अपने फंक्शंस। बट अगर रेजिग्नेशन ही दे दिया, अगर ऑफिस ही वेकेंट पड़ा है, उस केस में हम लोग इलेक्शन करेंगे एंड ये लोग वहाँ पर नहीं आएंगे। ओके, उसके बाद आता है स्पीकर प्रो टर्म। स्पीकर प्रो टर्म क्या होता है? आप लोगों ने, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, स्पीकर अपना ऑफिस नहीं छोड़ते। ठीक है, ही रिमेन इन द ऑफिस टिल द फ्रेशली इलेक्टेड न्यू सभा मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जब पहली लोकसभा मिल आ रही है, पहली लोकसभा आती है इलेक्शन के बाद, तो प्रेसिडेंट एक स्पीकर प्रो टर्म डिसाइड कर लेते हैं फॉर अ टेम्प्रेरी पीरियड अंटिल द हाउस गेट इट्स परमानेंट स्पीकर। ठीक है, सो बस यही है। उसके बाद अगर हम लोगों को स्पीकर क्लियर है, अगर हम लोगों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा क्लियर है, देन कमिंग ऑन टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। एंड व्हेन आई विल बी सेइंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा, सो you should understand that again it is very simple to understand. सबसे पहले एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। क्लियर है? उसके बाद रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। रिमूवल कैसे होता है?
सिंस ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट, सो जब हमने वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे रिमूव होते हैं. द सेम प्रोसेस. वंस ही विल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वीपी देन ओनली ही विल बी डिस्कस. ठीक है. उसके बाद ही इज़ नॉट एन एमपी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब तक हमने क्या पढ़ा? स्पीकर एज वेल एज द डेप्यूटी स्पीकर आर द पार्ट ऑफ द हाउस, बट once it comes to the Rajya Sabha, we know that he is not the part of the house, so we can say that the member of we can say that the chairman of the Rajya Sabha is not the part of the house. He is not an MP, he is the vice president. Again, there is no special oath as such, and salary are charged over the consolidated fund of India. एंड जस्ट लाइक द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर के पास भी कास्टिंग वोट होती है. मैंने पहले ही बताया था कि द मोमेंट ही विल एक्ट लाइक अ स्पीकर, ऑल द पावर गिवन टू द स्पीकर शेल बी प्रोवाइडेड टू द डेप्टी स्पीकर एज वेल. ठीक है. सो चेयरमैन के पास भी क्या होती है? कास्टिंग वोट होती है. इफ़ इट इज़ क्लियर टिल हेयर, नाउ कमिंग ऑन टू द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. अगेन देखो, डेप्यूटी चेयरमैन क्या होते हैं? आपके हाउस के ही पार्ट होते हैं. एमपी ऑफ राज्यसभा. ही इज़ द एमपी ऑफ राज्यसभा. एंड वो रिज़ाइन किसको देते हैं? ही रिज़ाइन टू द चेयरमैन. ठीक है. ही रिज़ाइन टू द चेयरमैन. एंड रिमूवल कैसे होता है? मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. रिमूवल इज़ इम्पोर्टेंट. सैलरी चार्ज ओवर CFI. उसके बाद होते हैं सेक्रेटरी जनरल. देखो, दोनों ही हाउस का, वेदर इट इज़ लोकसभा, whether it is Lok Sabha or it is Rajya Sabha, in both the cases you know that इनका क्या होता है? अपना अपना सेक्रेटरीट होता है जहाँ पर सारा काम होता है. सो एक होते हैं सेक्रेटरी जनरल, एंड उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल. ठीक है. लोकसभा के केस में स्पीकर, राज्यसभा के केस में चेयरमैन. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपके निकल करके, वो आती है लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन. ओके. अब आप लोग एक चीज़ को देखें कि लीडर ऑफ हाउस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं, इट इज़ नॉट मैंशन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर वो आपको स्टेटमेंट दे दें लीडर ऑफ हाउस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन आर क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर वुड बी नो, दे आर नॉट. कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है. ठीक है. our constitution is silent in case of the leader of the house and leader of the opposition, but these are mentioned in the rule book of the respected house. ठीक है. बट एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका विप. विप के केस में क्या होता है? विप ना तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंशनड है और ना ही आपके रूल्स ऑफ हाउस के अंदर मैंशनड है. ठीक है. एंड ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली कन्वेंशन के बेसिस पे आपका चलता है. विप क्या होता है? देखो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी विप अपॉइंट करती है हाउस के अंदर. इनका काम क्या होता है? जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो बिल आएगा ये लोग बता देंगे कि आज ये वाला बिल आने वाला है, आपको इसके या तो फेवर में वोट डालना है या फिर अगेंस्ट में डालना है. और वो लोग ये बोल देंगे कि टुडे देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल विच हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस इन दी हाउस, तो आप सभी को प्रेजेंट होना है. जो नहीं होगा वो उनकी लिस्ट बनाएंगे दैट दिस पीपल्स आर नॉट प्रेजेंट. एक काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो इसको बोलते हैं विप. हर पॉलिटिकल पार्टी का एक विप होता है. If it is clear till here, we are coming on to another topic, that is the sessions of the parliament. Okay, sessions of the parliament. अब आप लोगों को बता दें कि पार्लियामेंट के सेशन को कौन समन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. हर एक बजट सेशन से पहले क्या होता है? एक प्रेसिडेंट की स्पीच होती है. एंड आपको ये भी बता दें कि प्रेसिडेंट की स्पीच होती है जब भी न्यूली इलेक्टेड जब भी फ्रेशली इलेक्टेड न्यूली जब भी न्यूली इलेक्टेड हाउस होगा, लोकसभा होगी, सो क्या होगा? प्रेसिडेंट विल गिव द स्पीच. एंड हर एक बजट सेशन से पहले क्या होगी? एक प्रेसिडेंशियल स्पीच होती है. ठीक है. उसके बाद अनोदर थिंग विच यू हैव टू सी लाइक पुट अ स्टार ओवर इट. वो आपसे पूछ सकते हैं कि पार्लियामेंट के दो हाउस के सेशन के बीच का मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? इट कैन बी 6 month बट नॉट मोर देन दैट. ओके. 6 month में बी द मैक्सिमम गैप. उसके बाद पार्लियामेंट को एटलीस्ट साल में 2 बार मिलना पड़ता है. एटलीस्ट 2 बार. ओके. बट यूजुअली आप लोग देखेंगे तो हमारी पार्लियामेंट 3 सेशंस करती है. ठीक है. पार्लियामेंट हमारी कितने सेशंस करती है? 3 सेशंस करती है. लो बोलता है आप कम से कम 2 बार आएँ और अपना सेशन लें,
बट पार्लियामेंट कितने करती है, 3 करती है. एंड द सेशंस आर लाइक बजट सेशन, द monsoon session and the winter session. Okay, budget session, monsoon session and the winter session. The winter session is the smallest duration, for the smallest duration. Okay. अब अगर इतना क्लियर है, फिर हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं. वो आ जाती है एडजर्नमेंट. एडजर्नमेंट क्या होता है? देखो, सबसे पहले एडजर्नमेंट करता कौन है, आप ये समझें. इट इज़ डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. एंड जब मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहता हूँ, मेरा मतलब है कि अगर लोकसभा की बात करता हूँ मैं, सो लोकसभा के केस में कौन करता है, स्पीकर. और अगर राज्यसभा की बात करता हूँ, उस केस में कौन करता है, चेयरमैन. ठीक है. सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बेसिकली एडजर्न द हाउस. द पावर लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. एंड इसका मतलब क्या होता है, इट सिंपली मीन्स सस्पेंडिंग ऑफ अ वर्क फॉर अ वेरी स्पेसिफिक टाइम पीरियड. इट आइदर मे बी आवर्स, डेज और वीक्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये बोल देता हूँ कि आपकी क्लासेस को मैं एडजर्न कर रहा हूँ 5 दिन के लिए, ठीक है. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडजर्निंग इट फॉर द 5 days. मैं बोल देता हूँ कि 5 दिन तक मैं आपकी क्लास नहीं लूँगा. आई एम एडजर्निंग योर क्लासेस फॉर 5 days. इट इज़ वॉट, इट इज़ एडजर्नमेंट. उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपके निकल के, वो आती है एडजर्नमेंट साइन डाई. अब आप लोगों ने इसको लीगल मैक्सिस में भी पढ़ा होगा, साइन डाई, एडजर्नमेंट साइन डाई. ठीक है. इसका मतलब होता है इनडेफिनिट टाइम पीरियड. ठीक है. फॉर द indefinite time period, it is called as adjournment signed die for the very indefinite time period. And remember that इसमें क्या होता है, जो पार्लियामेंट का सिटिंग होती है ना, उसको इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए क्या किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है एंड टर्मिनेट किया जाता है. सबसे पहले आप देखेंगे कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर. लोकसभा के केस में स्पीकर, राज्यसभा के केस में चेयरमैन. एंड इसको इनडेफिनिट पीरियड के. फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ आपकी क्लासेस नहीं होंगी. कब तक नहीं होंगी, 2 दिन तक नहीं होंगी, 4 दिन तक नहीं होंगी, 1 हफ्ते तक नहीं होंगी, 1 महीने तक नहीं होंगी. कब तक नहीं होंगी, मैंने नहीं बताया. ठीक है. सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ फॉर एन indefinite टाइम पीरियड. एंड रिमेंबर, इट इज़ लाइक रिवोकेबल. इट इज़ नॉट इरिवोकेबल, इट इज़ रिवोकेबल. फॉर एग्जाम्पल मैंने आज बोल दिया कि आई एम एंजॉयमेंट साइन डाई है. ठीक है. हो सकता है मैं कल ही आपकी मीटिंग दोबारा से बोला लूँ, मैं बोल दूँ ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, हम उसको ख़त्म करते हैं, जो हमने बोला उसे भूल जाओ, एंड कल से वी विल स्टार्ट अ नॉर्मल सेशन. ऐसा हो जाता है. अब आप लोग अनोदर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, डेट इज़ द प्रोरोगेशन. प्रोरोगेशन के केस में क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि इट इज़ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो अब तक आप लोगों ने एक चीज़ देखा कि जब हम बात कर रहे थे किसकी, व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी, when we were discussing about the adjournment signed die, we were seeing that it was done by the presiding officer of the house, but prorogation is done by the president of India. So this is one distinction between these two concepts. Okay, so please remember it is done by the president. And again, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रेसिडेंट सिर्फ सिटिंग ही टर्मिनेट नहीं करता, पूरा का पूरा सेशन टर्मिनेट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल बजट सेशन चल रहा था, सो प्रेसिडेंट ने अगर प्रोरोगेशन कर दिया तो पूरा का पूरा बजट सेशन ही ख़त्म हो गया, पूरा का पूरा विंटर सेशन ही ख़त्म हो गया. ओके. या फिर मॉनसून सेशन, इस तरीके से. और जो हमने प्रीवियस देखे थे एडजॉर्नमेंट एंड एडजॉर्नमेंट साइन है, उसमें पूरा सेशन ख़त्म नहीं होता. ठीक. उसके बाद जो अनदर इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने आती है, वो आती है डिसोल्यूशन. अब डिसोल्यूशन में क्या होता है, सबसे पहले तो डिसोल्यूशन कब होती है, लोकसभा. सबसे पहले तो डिसोल्यूशन केवल और केवल लोकसभा हो सकती है, राज्यसभा डिसोल्व नहीं हो सकती. क्यों, बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट हाउस, सो ओनली लोकसभा कैन बी डिसोल्व. अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ दैट डिसोल्यूशन कैन बी डन बाय व्हाट, बाय, एक तो हो सकता है नेचुरली डिसोल्व हो जाती है, एंड एक बाय द प्रेसिडेंट. फॉर एग्जांपल जनरल असेंबली के जब इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, उससे पहले नेचुरली जब टर्म कंप्लीट हो जाता है 5 साल का, तो ख़त्म हो जाती है. उसके बाद क्या होता है, एक होता है प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के हाथ में ये अथॉरिटी होती है, ये पावर होती है कि ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट में ऑल्सो डिसोल्व द लोकसभा प्रोसीडिंग्स एनी फर्दर. ठीक. एंड इट इज़ इररेवोकेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
इट इज़ इररेवोकेबल। अब तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए दोज वर रेवोकेबल, उनको वापस, वो पत्थर की लकीर नहीं थे, बट यहाँ पर ये पत्थर की लकीर है। ओके, सो याद रखने का एक तरीका लिख सकते हैं पत्थर की लकीर। सो इट इज़ इररेवोकेबल बिकॉज एक बार मुंह से शब्द निकल गए, प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दिया, ऑल्दो मुंह से शब्द नहीं माने जाते, ये सब रिटर्न में होता है, सारा काम राइटिंग में होता है। सो एक बार अगर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए डिसोल्यूशन ऑर्डर पे, इट मीन्स फिर आप इसको वापस से रेवोकेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, हम दोबारा से हाउस बिठाएंगे, नहीं। फिर आप क्या करेंगे, आपको दोबारा से इलेक्शन कराने होंगे, इलेक्शन प्रोसेस होगा, पूरी लोकसभा दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट होगी, ठीक है। डिसोल्यूशन एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे 2019 में क्या हुए थे, इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2021 में प्रेसिडेंट ये बोलते थे कि डिज़ोल्व ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर क्या होता, नए इलेक्शन होते, ठीक है। इफ़ इट इज़ क्लियर टिल हेयर, सो हम लोग ये देखेंगे कि एक बिल हमारा लोकसभा के अंदर पेंडिंग है, उसका क्या होगा। अगर लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं तो जो बिल पेंडिंग है उसका क्या होगा। देर आर 6 कंडीशंस हियर, बट माई डियर फॉर दिस पर्टिकुलर लो एंट्रेंस ऑफ द DU or LLB or let's say anything like BHU or Punjab, they will not ask you concept like this. So it is very complex thing, these 6 points are very very complex, and ये मोस्टली UPSC सिविल सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बट इन केस ऑफ द लॉ एंट्रेंसेज आई डोंट थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट, ऑल्दो आई हैव मैंशनड them in my PPT. If you guys want to read them you can read it by yourself, but not important for the law entrances, ठीक है। so up to you how will you do that। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट आइदर यू कैन यूज़ हिंदी और यू कैन यूज़ इंग्लिश फॉर द ट्रांजेक्टिंग बिजनेस इन द पार्लियामेंट। उसके बाद अनोदर इम्पोर्टेंट थिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट इज़ दैट another important thing is like the lame duck session, and lame duck session is simply means that it refers to the last session of the existing of Lok Sabha and the Rajya Sabha। It lame duck session, and lame duck session means what, it simply means that it refers to the last session of the existing Lok Sabha after a new Lok Sabha has been elected। Okay, so lame duck session means what, lame duck session का क्या मतलब होता है, it simply means that it refers to the last session of the existing Lok Sabha after a new Lok Sabha has been elected। यानी कि आप लोगों की नई लोकसभा चुन करके आ चुकी है और जो आपकी प्रीवियस वाली लोकसभा थी उसका लास्ट सेशन चल रहा है, उसको बोलेंगे लेम डक सेशन। नाउ आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे मोशंस होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे मोशंस होते हैं हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, बट all of those motions are not important, only few motions, or specifically saying only this very no confidence motion is important for the law entrance। so मैं आपको सारे मोशन नहीं पढ़ाऊँगा, आई विल ओनली टीच यू नो कॉन्फिडेंस मोशन बिकॉज दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी के जितने भी मोशंस होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, यू कैन लीव देम, ओके। बट अगेन इट इज़ अप टू यू वेदर यू गाइज वांट टू लीव देम और वांट टू नॉट। आप पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, बट आई विल नॉट टीच देम, ठीक है। आई विल ओनली टीच यू द नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर आपको सबसे पहले तो बता दें कि लो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पर आता है। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, राज्यसभा के अंदर ये इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। अगर लोकसभा के अंदर ये इंट्रोड्यूस हो जाता है सो एंटायर काउंसिल हैज़ टू रिज़ाइन इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड इंक्लूडिंग ऑल दोज MP हु आर द पार्ट ऑफ द राज्यसभा। सबसे पहले कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। एंड ये क्यों आता है लोकसभा में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। अगर ये पास हो जाता है इसका मतलब जो आपकी सरकार है, जो आपकी एग्जीक्यूटिव, उनके पास हाउस का कॉन्फिडेंस नहीं है, मेजोरिटी नहीं है उनके साथ, उस केस में उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रिज़ाइन किया था जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था, यू गाइज नो अबाउट इट। सो
if passed in Lok Sabha, entire council of ministers must resign from office, including MP from Rajya Sabha. ओके, सो लेट्स से एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, ऑल्दो नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट अगर हो जाता है सो आपके जो एस जयशंकर हैं वो कहाँ के मिनिस्टर हैं, राज्यसभा के, सो उनको भी रिजिग्नेशन देना होगा, ठीक है. सो नो कॉन्फिडेंस मोशन, यहाँ तक एवरीथिंग इज़ क्लियर. सो आई एम स्टॉपिंग माई लेक्चर टिल हियर एंड वी विल मीट टमोरो. एंड कल हम बच्चों क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस दी another concept in the house, importantly the bills, the special privileges of the Lok Sabha, special privileges to the Rajya Sabha, the difference between these two houses power, ठीक है. The most important bills we will discussing ordinary bill, financial bill, money bill, constitutional amendment bill, everything is going to be discussed there, ठीक. सो हम लोग वहाँ पर ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इन डिटेल. And along with it we will also be discussing the state legislature, and by combining these two lectures we can say we have finished our topic of legislature as a whole, ठीक है बच्चों. एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि ये आपके लिए मैंने स्पेसिफिकली यूट्यूब पर अपलोड किया है. इट इज़ द पार्ट ऑफ माई क्रैश कोर्स, एंड क्रैश कोर्स में हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं एंड बच्चे डाउट अपने पूछते हैं. ऑल्दो आई हैव स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड दिस सेशन फॉर यू ऑन द यूट्यूब, इसीलिए आपको बच्चों की वॉइस, बच्चों के क्वेश्चंस सुनाई नहीं दिए होंगे. बट जब हम लोग लाइव पढ़ाते हैं उसमें क्या होता है, एवरीबडी इज़ अलाउड टू स्पीक, टू रेज देयर डाउट्स, एवरीथिंग, ओके. एंड हम लोग उनको ये पीपीटी प्रोवाइड कराते हैं. सो एवरीथिंग इज़ देयर इन जस्ट 2000 रुपीज़. वहाँ पर आपको करंट अफेयर मिलता है, वहाँ पर आपको लीगल करंट अफेयर मिलेगा, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मिलेंगी, आपको मैथ की क्लासेस आपकी कराई जाएंगी, सब कुछ लाइव कराया जाएगा. आई विल बी अवेलेबल फॉर यू. आपका कोई डाउट है आप मेरे से पूछेंगे. आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको टेस्ट लिए जाते हैं, आपके PYQs ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे एज अ काइंड ऑफ अ टेस्ट, लाइक जैसे पेपर नहीं होता आपका ड्यू वाला, इस तरीके से 4 ऑप्शंस के साथ, नेगेटिव मार्किंग के साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी. सो एवरीथिंग विल बी देयर इन द कोर्स विच इज़ अवेलेबल ऑन माई ऐप. द लिंक ऑफ द ऐप इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहाँ पर जाएँ, आप अभी भी कोर्स परचेज़ कर सकते हैं. इट इज़ जस्ट एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ 2000 रुपीज़, and this course will give you more value than what you will pay. And again saying that 2000 रुपये will not matter at you at all in the longer run अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ओके. बट इन केस आप नहीं ज्वाइन करना चाहते, नॉट अ प्रॉब्लम, यूट्यूब पर भी काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है. यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फ्रॉम द यूट्यूब. सो इट्स अप टू यू. द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द कोर्स मे कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप. माई नंबर इज़ I am just writing my contact number here. This is my contact number. You can contact me on the WhatsApp and the link is of the app is in the description box. आप description box में जा कर के ऐप को चेक करें, डाउनलोड करें एंड कोर्स को वहाँ से परचेज़ करें. एंड जो भी आपकी क्लासेस निकल चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में अवेलेबल कराई जाएंगी, एंड जो कि क्लासेस आगे चलेंगी वो आपको लाइव कराई जाएंगी सारे बैच के साथ, ठीक है. सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो लेट मत करो, क्योंकि क्लासेस हो रही हैं डेली बेसिस पर, आपका छूट रहा है. सो लाइव क्लास करने के लिए फटाफट एनरोल करें. प्रीवियस क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, सारा मटेरियल अवेलेबल है, एवरीथिंग इज़ देयर. एंड बस यही था. सी यू गाइज, लव यू गाइज, होपफुली यू आर डूइंग वेल इन योर प्रिपरेशन. सी यू गाइज इन दी अनदर वीडियो. जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, शाइनिंग ऑफ. अपना बहुत ध्यान रखना.